Welcome you friend. In this video we are going to discuss about various disease of coconut such as wilt and bud rot. So let's get started. Coconut wilt. This disease is also known as Tanjore wilt, basal stem end rot, Ganoderma wilt, and caused by Ganoderma lucidum and Ganoderma aplanatum. Coming to symptom. Initial symptom start with yellowing and drooping of the outer circle of the leaves. This is followed by exudation of reddish brown liquid through crack at the base of the trunk and oozing spreads upward. Decaying of tissue at bleeding point and rotting of the basal portion of the stem. The bark turn brittle and often get peeled off, leaving open cracks. The internal tissue are discolored, disintegrated and emit bad smell. Bracket formation at the base of the trunk during rainy season. Ultimately, the palm tree will die. ये जो पिक्चर्स हैं ये गैनोडर्मा विल्ट के हैं. पहले सिम्टम कहाँ दिखाई देता है? जो आउटर सर्कल में लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसमें येलोइंग होता है और वो नीचे झुक जाते हैं. उसके बाद बेसल पोर्शन में जो क्रैक्स होते हैं वहाँ से रेडिश ब्राउन कलर का वाटरी सब्सटेंस बाहर आता है. इसके स्टेम में क्रैकिंग होती है और ब्रैकेट बनता है. ये ब्रैकेट है. ये फंगस का फ्रूटिंग बॉडी होता है. कमिंग टू etiology. The fungus is a hair fungus belong to subdivision Basidiomycotina. That's why mycelium कैसे होते हैं? हायलाइन, ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं. दे प्रोड्यूस क्लेमाडोस्पोर्स. बेसिडियोकार्प भी बनता है. ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिडियोकार्प है. बेसिडियोकार्प में क्या बनते हैं? बेसिडियोस्पोर. ये जो पिक्चर में दिख रहा है ये है बेसिडियोस्पोर्स. ये थिक वॉल्ड होते हैं, ब्राउन कलर के, स्मॉल होते हैं. कमिंग टू डिजीज साइकिल. ये जो डिजीज़ है उसका जो सेकेंडरी स्प्रेड है किससे होता है? रूट कॉन्टैक्ट से और फ्लड इरिगेशन से. इसीलिए हमें फील्ड में प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करना है और फ्लड इरिगेशन को अवॉइड करना है. पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है? क्रॉप डेब्रिस में, पेरिनियल होस्ट में एज बेसिडियोस्पोर एंड माइसिलियम के फॉर्म में. वो रूट में इन्फेक्शन करते हैं, सिम्टम डेवलप होता है और ये जो फंगस है मल्टीप्लाई होता है, बेसिडियोस्पोर बनाता है. उसके बाद ये स्पोर्स रूट कॉन्टैक्ट और फ्लड इरिगेशन के द्वारा आसपास के दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं. कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी. प्लांट एज शुड बी मोर देन 10 ईयर, प्रोलॉन्ग ड्राउट एंड हाई सॉइल मॉइस्चर, लो रेनफॉल, sandy loam soil. Coming to management. For any disease, we should adopt integrated disease management practice like removal and destruction of affected palm, application of green manure, application of biocontrol agent like Pseudomonas fluorescens, Trichoderma viride, application of phosphobacteria, Azotobacter, application of farmyard manure, neem cake once in 6 months. The bleeding patches in stem should be removed and protected with tridamorph followed by application of coal tar. Oreofungin and copper sulfate should be mixed with water and should be applied as root feeding.
Root feeding with tridamorph and hexaconazole should be done 3 times at 3-month interval. 40 liter of 1% Bodo mixture should be applied as soil drench around trunk in radius of 1.5 meter. To download PDF files, please scan this QR code. Download link is also available in description of video. Coming to bud rot. This is caused by Phytophthora palmivora. बड रॉट मीन्स क्या होता है, जो कोकोनट का टॉप पोर्शन होता है उसमें रॉटिंग हो जाना. पाम ऑफ ऑल एज आर ससेप्टिबल. In seedling, the earlier symptom is the yellowing of 1 or 2 younger leaves. Basal tissue of the leaf rot and can be easily pulled out from the crown. In the later stage, the spindle wither and drop down. The tender leaf base and the soft tissue of crown rot and emit foul smell. Ultimately, the entire crown fall down and the palm trees die. In adult palm, the first visible symptom is the color change of the spear, which become pale and break at the base and hang down. The rotting slowly progress downward and finally affect the meristem, which caused the killing of palm tree. Later, the other leaves also droop down. Even then, nuts that are retained on the palm may grow to maturity. इस डिजीज़ में जो पहला इन्फेक्शन है वो टॉप लिप से स्टार्ट होता है. जब सीडलिंग स्मॉल होता है तो जो टॉप लिप है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, बाद में सड़ने लगता है. धीरे धीरे ये जो पूरी पत्तियां हैं वो सड़ जाती हैं और बैड स्मेल आता है. यंग ट्री में जब इन्फेक्शन होता है तो सेम टाइप के सिम्टम आते हैं, लेकिन अगर उसमें फ्रूट्स बन गया है तो फ्रूट मैच्योर भी हो सकते हैं. फ्रूट में डिजीज़ का ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता. अब आते हैं इटियोलॉजी में. जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है, इसीलिए इसका जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हायालाइन होता है. ये है सेप्टेट हाइफी और ये है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी. इसमें आप देखिए, इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में कोई, यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियस, पहला दूसरा, ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते हैं. स्पोरेंजियोफोर इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस सिंगली आर इन ग्रुप. जो स्पोरेंजियोफोर है जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है. दे आर अनब्रांच्ड, बियर सिंगल सेल्ड, हायालाइन, राउंड और ओवल स्पोरेंजिया. सो इसका जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है, सिंगल सेल्ड, हायालाइन और ओवल या राउंड होता है. और एक स्पोरेंजियोफोर में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है. स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है सो ये जूस स्पोर्स बनाता है. ये यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है. यहाँ से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस स्पोर्स बाहर आते हैं. एक स्पोरेंजिया में 30 से लेके 50 जूस स्पोर्स होते हैं. फिर ये जो एक एक जूस स्पोर्स हैं ये सिंगल सिंगल इन्फेक्शन करेंगे. द फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस oospores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स. सो oospores इज अ सेक्सुअल स्पोर्स. और क्लेमाइडोस्पोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा, सर्वाइवल के लिए. जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब
क्लेमाइडोस्पोर बनता है। कमिंग टू डिजीज साइकिल, पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है? वीड होस्ट में और सॉइल में एज ऊस्पोर। फिर इन्फेक्शन होगा लिप्स में, ये मल्टीप्लाई होते हैं, फंगस सिम्टम डेवलप होता है और ये स्पोरेंजिया बनाते हैं। स्पोरेंजिया से जूस्पोर बनता है और ये स्पोरेंजिया एंड जूस्पोर बीटल के थ्रू या रेन वाटर के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। बाद में कोलेटरल होस्ट और वीड होस्ट में भी इन्फेक्शन होता है और पैथोजन सर्वाइव करता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, कंटिन्यूअस रेनी वेदर, 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 98 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और पुअरली ड्रेन्ड सॉइल। कमिंग टू मैनेजमेंट, we should always adopt integrated disease management practice like proper drainage of the orchard, adopt proper spacing, removal of infected part and drenching of copper oxychloride, application of Bordeaux paste, application of copper oxychloride or Bordeaux mixture 1% before the onset of monsoon। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please like and share the video and subscribe to my channel. To watch other videos, click the link.